یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی وہ کریں گے. جھوٹا الزام ہے, کوئی بھی نہیں مانتا ایسا کوئی بھی نہیں مانتے ہیں. ابھی دکھاؤں والے اسماعیلی آپ مانتے ہیں سمیر بھائی؟ آپ مانتے ہیں کی بات نہیں ہو رہی, محمد صلی اللہ علیہ اسماعیلی کی بات ہو وسلم رہی کی ہے یہاں شفاعت پر. امام حسین کریں گے؟ نہیں, یہاں پر اسماعیلی کی بات ہو رہی ہے. کون مانتا ہے؟ کون مانتا ہے؟ جو مانتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں. نبی پاک کی شفاعت حضرت امام حسین کریں گے؟ جو کون مانتا ہے؟ مانتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں. کون ہے وہ؟ میں دکھا دوں گا وہ حوالے بھی. دکھاؤ بے شمار لوگ مانتے ہیں جو حضرت دکھاؤ, علی ایک کو بندہ خدا دکھاؤ مانتے ہیں. جو حضرت امام حسین کو نبی پاک کا شافع کہتا ہے, وہ بندہ پیش کرو. ہاں تو ٹھیک ہے, ان کو کہہ رہے ہیں. جو بھی کون ہے وہ بندہ؟ جھوٹا الزام ہے, آگے پڑھو. جو بھی ہیں, چلو جھوٹا الزام آگے جو پڑھو. بھی ہیں. کسی کا نام یہاں پر لکھا ہے؟ کسی کا نام لکھا ہے یہاں پر؟ ایسا بندہ کوئی بھی نہیں ہے. ایسا کوئی آپ بھی جھوٹ بندہ بول نہیں رہے ہے. ہیں, کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر میں دکھا دوں ایسے بندے کو, پیش کر دو. ہاں اگر میں دکھا دو. دکھا دو جو کہتا ہے نبی پاک کی شفاعت امام حسین کریں گے. دکھاؤ وہ. اگر دکھا دیں تو وہ دکھا دو نا. دکھا دیں. دکھا دیں. کون ہے؟ جو بھی ہو اس کی بات ہو رہی ہے جو یہ کہتا ہے. کون ہے؟ دکھاؤ نا, نام لو نا اس کا. کوئی بھی چلو ہو. کوئی بھی ہو. ہاں, جو یہ کہتا ہے نام ہے, اس کو ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں ہے, آگے پڑھو. ہاں, جو کوئی بھی نہیں ہے. کون سا وہابی ہے جو خدا کو مانتا ہے کہ وہ اچھا یار آگے کون ہے؟ اسمیر بھائی آگے پڑھوانا ہے کہ نہیں؟ کون سا نہیں پڑھنی, دوسروں کو بھی بات کرنی ہے, آگے پڑھو. ختم. امیر بھائی تو یہ کیوں بولتے ہیں بار بار درمیان میں؟ پھر پڑھنے دیں خاموشی سے. چلو جلدی جو یہ مانتے ہیں کہ امام حسین رسول اللہ کی شفاعت کریں گے, یہ ان کو جواب ہے. یہ بات آپ غور میں رکھ لیں. یہ 3 جملے آپ نے سن لیے ہیں. ان 3 جملوں میں آپ کا کوئی سوال ہے سمیر بھائی؟ آگے پڑھیں. کوئی سوال نہیں, کوئی سوال نہیں, آگے سوال ہے. اس میں کوئی اعتراض میں نے نہیں آپ سے پوچھا ہے عمر صاحب, او بھائی آگے سمیر صاحب سے پوچھا ہے. سمیر صاحب یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, میرا ٹائم کھا رہے ہیں, مجھے ٹائم میں پڑھ کے سناتا ہوں. میں پڑھ کے سناتا ہوں. سمیر سے بات کر رہا ہوں. دیکھنا میں پڑھ, مطلب اس نے ایک بندے نے 1 گھنٹہ بات کرنی ہے تو آگے جا ہی نہیں رہا. پڑھ کے کیوں نہیں سناتے؟ اگلے شعر موت ہیں اس کی, اگلے شعر کی میرا طرف کوئی بھی موت نہیں ہے. یہ 3 شعر آپ نے سن لیے ہیں. یہ ان لوگوں کو مخاطب ہیں جو حضرت امام حسین سے وفا نہ کر پائے, جو حضرت امام حسین کے جن کی وفا جو تھی رسول حضرت امام حسین نے ان پر لعنت کی, اور جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت امام حسین تمام نبیوں کی شفاعت کریں گے اور رسول اللہ کی شفاعت کریں گے, ان کو ہے. پس ہاں, یہاں پر تم گمان کرتے ہو کہ حسین تمام مخلوق کا سردار ہے. تم گمان کرتے ہو کہ حسین تمام مخلوق کا سردار ہے اور ہر ایک نبی اسی کی شفاعت سے نجات پائے گا اور بخشا جائے گا. سمجھ آئی ہے؟ یہ ان لوگوں کو بات کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ حسین ہی ساری مخلوق کا مالک ہے اور ہر نبی اسی کی شفاعت سے نجات پائے گا اور بخشا جائے گا. یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. آگے پڑھائیں, آگے پڑھائیں. یہ بھی بول رہے ہو. او بھائی پڑھو, آگے پڑھو, ختم کرو بھائی. او بھائی بات کرو, آگے بڑھو, ختم کرو. یہ کیوں بولتا ہے سمیر بھائی؟ آپ دیکھیں یار, یہ انصاف کریں آپ تھوڑا سا. نہیں, آپ 1 گھنٹہ ہوا ہے بھائی, سب لوگ آپ ہی کی سنیں. کوئی گھنٹہ نہیں ہوا سمیر بھائی, آپ نے کہا تھا یہ پڑھ کے سنانا. اور دیکھیں سمیر بھائی, اگر کوئی بات سمجھ آتی ہے اس میں گھنٹہ لگے 2 گھنٹے لگے, مین بات ہے بات کو سمجھنا. سمیر صاحب جی شاہ صاحب, ایسا کریں 1 منٹ لگا دیں, 1 منٹ عامر وزیر صاحب کو دیں اور 1 منٹ عمران خان. نہیں, ٹائمنگ کے حساب سے ہی چل رہے تھے, پھر انہوں نے ان کا جواب لمبا. باری باری بولیں, باری باری. تم گمان کرتے ہو کہ حسین تمام مخلوق کا سردار ہے اور ہر ایک نبی. چلو ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم پھر شروع ہوگا. ابھی کون بات کرے گا؟ ظفر اللہ شاہ صاحب, آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ سمیر بھائی سن, جس نے بھی کرنی ہے وہ کرے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. سمیر بھائی سن, اگر تو کوئی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے تو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے. اس میں ٹائم تو لگے گا نا پیارے بھائی. ہاں, میں آخری 3-4 لائنیں جلدی سے پڑھ کے ان کا مطلب بتاؤ. جی میں بتا دیتا ہوں. تم گمان کرتے ہو کہ حسین تمام مخلوق کا سردار ہے اور ہر ایک نبی اسی کی شفاعت سے نجات پائے گا اور بخشا جائے گا. پس اگر یہ شرک دین میں جائز ہوتا تو تمام پیغمبر محض لغو طور پر مبعوث شمار کیے جاتے. ٹھیک ہے, اور یہ بہتان ہے اور انبیاء علیہ السلام کی کثرے شان ہے. اے جنگلوں کے گول تجھ پر ویل, یہ تو کیا دلیری کر رہا ہے؟ تم اس کشتہ سے نجات چاہتے, اس کشتہ. ٹھیک ہے جی سمیر بھائی, یہ جن لوگوں کے اوپر مخاطب کیا ہے نا, جن لوگوں کو اوپر مخاطب کیا ہے, جن لوگوں کے اوپر عقائد بیان کیے ہیں, انہی کو نیچے مخاطب کیا ہے اور انہی کے حسین کے متعلق یہ بات آگے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح یہاں پر وہابیوں کے خدا کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, وہابیوں کے خدا کی بات ہو رہی ہے, شیعہ کے خدا کی بات ہو رہی ہے, دیوبندیوں کے خدا کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی یہاں پر
उनकी बात हो रही है जिनको ऊपर जवाब दिया गया है, जो कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन तमाम नबियों की शफात करेंगे, वो तमाम मखलूक के मालिक हैं, तमाम अंबिया उनकी शफात से जो है वो बख्शे जाएंगे। चलो आगे आगे लाइनें पे पढ़े, आगे लाइनें पे। कहते हैं तुम इस कुश्ता से निजात चाही कि नो उम्मीदी से मर गया, पास तुमको खुदा ने जो गयूर है हर एक मुराद से नो उम्मीद किया, वो खुदा जो हलाक करने वाला है, और बाखुदा उससे मुझको कुछ ज्यादत नहीं। इधर पूछना से तुमने इस कुश्ता से निजात चाही जो नो उम्मीदी से मर गया, इसका क्या मतलब से मर गया, पास तुम खुदा, ये क्या मतलब, इसका मतलब बताना जरा भाई। इसका मतलब ये है जी बता देते हैं। इसका मतलब ये कुश्ता का है, क्या मानी है, नो उम्मीदी का क्या मतलब है? हाँ वही बताने लगा हूँ। इस जुमले का मानी है कि जिस हुसैन को तुम कहते हो कि तमाम नबियों की शफात करेगा, वो तमाम मखलूक का मालिक है, तमाम मखलूक उसी की शफात से बख्शी जाएगी, अंबिया उसकी शफात से बख्शे जाएंगे, उसको हम नहीं मानते। वो तो एक तरह से नाउमीदी से मारा गया है। तुमने उस कुश्ता से निजात चाही जो नौमीदी से मर गया। कौन था जो नौमीदी से मर गया? इनका हुसैन, जो ये कहते हैं कि जो खुदा है, उनको कह रहे। ठीक है, ये नाउमीदी से फौत हो गए थे करबला में। उन करबला वालों की तो बात ही नहीं यहाँ पर हो रही। कौन नौमीदी से मरा है? हाँ पता नहीं कौन मरा है। हाँ, जो शिर्क करते हैं। ठीक है हाँ? समीर भाई तुमने उस कुश्ता से निजात चाही कि जो नौमीदी, इसको कहो ये माउस पीछे टाई ऊपर ना रखे, नौमीदी वाला लफ्ज मुझे नजर आ रहा है। आ रहा है, देख लो। तुमने उस कुश्ता से निजात चाही जो नौमीदी से मर गया। हाँ? नौमीदी से किसको कहा जा रहा है कि ये वो इल्जामी नौमीदी से जवाब मर है गया? ना, ये इल्जामी जवाब है। किसके अगर मतलब? मैं ये इल्जामी जवाब देकर कहूं कि मिर्जा कादियानी टट्टी में मर गया जो तो अगर मैं ये मुजद्दद था, तो फिर ना जायज है ना, ये इल्जामी जवाब जायज है ना? ये देखें, ये जवाब अहमद रजा खान बरेलवी ने अगर नहीं दिया, ओ भाई अगर अहमद रजा खान बरेलवी ने ये इल्जामी जवाब नहीं दिया, समीर तो भाई आप पूछ के देना, समीर भाई देना कि जो अगर ये इल्जामी जवाब अहमद रजा खान बरेलवी ने नहीं दिया कि इनका खुदा टट्टी करता है, हेलो भाई, इनका खुदा टट्टी करता है, तो तब बताएं। हेलो, वादियों का खुदा, आमर नजीर का खुदा, उन्होंने कहा है यार मुझे करता है। मुझे अपने टाइम में बोलने दें, इसलिए नहीं बोलने देना। इसको मैंने आपको कहा था ना, आखिरी 3 लाइनें नहीं पढ़ेगा मर जाएगा, लेकिन आखिरी 3 लाइनें नहीं पढ़ेगा। शुरू हो गए हैं, मैं तो पढ़ रहा हूँ। और भाई बात करो, बात खत्म करो, आखिरी 3 लाइनें असल में। समीर साहब मैं तो पढ़ रहा था, ये बोला है, क्यों बोला है दरमियान में, ये टट्टी करने वाले खुदा का मानने वाला। बस अच्छा जी बताएं कि वो कौन है जो कुश्ते का क्या मतलब होता है? हाँ, तुमने इस कुश्ता से निजात चाही। कुश्ता क्या होता है? कुश्ता क्या होता है? इसको पूछना जरा, कुश्ते का मानी पूछना इसको। कुश्ता पता नहीं कुश्ता क्या होता है, बताओ। कुश्ता इसको नहीं पता कुश्ता क्या होता है? मरकब कुश्ता। ना 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 ना, पहले पढ़ के आओ जाके। हाँ पढ़ने हैं। तुमने इस कुश्ता का क्या मतलब होता है? कुश्ता का क्या मतलब होता है? तुमने इस कुश्ता से निजात चाही जो नो उम्मीदी से मर गया। हाँ, मारा हुआ कुश्ता होता है, मारा हुआ। हाँ, तुमने उस कुश्ता से निजात चाही, यानी उस मारे हुए बंदे से जिसको मारा गया। हाँ। और कहता है उससे निजात चाही जो नौमीदी से मर गया। भाई पूछना वो कौन है जो नौमीदी से मर गया? पता नहीं कौन है, नाम समीर साहब कौन है? कौन है? समीर साहब पूछ के बताएं भाई। पूछ रहा हूँ, हुसैन को कहा नहीं लिखा हुआ, पूछ रहा हूँ समीर साहब कोई नाम लिखा हुआ यहाँ पर? नहीं, नाम तो नहीं, इमाम हुसैन के मुतालिक लिखा गया है ना। कहाँ पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है? ये पूरी मजमून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं, इमाम हुसैन के बारे में झूठ बोल रहे हैं। तो आपको ये किसके बारे में फिर ये लाइन? ये शिया जो कहते हैं, जो शिया के कायद हैं, जो गाली शिया जो मानते हैं कि वो खुदा है, उनके मतलब से निजात चाहे। ये तुमने उस कुश्ता से निजात चाही जो कि नो उम्मीदी से मर गया। कहाँ पर हजरत इमाम हुसैन का नाम यहाँ पर नहीं? तुम उस खुद कुश्ता से निजात पाई जो निजात चाही जो नो उम्मीदी से मर गया। अच्छा, ना उम्मीदी से कौन मर गया? कौन? नहीं, आप बताएं। नहीं, वो तो वाज़ेह तौर पर ही तो नाउज़ुबिल्लाह इमाम हुसैन को कह रहा है भाई। कहाँ पर इमाम हुसैन का? ये तो आप कह रहे हैं। देखो, सारा जिक्र इमाम हुसैन का हो रहा है। कहता है इमाम हुसैन का कहीं जिक्र इमाम हुसैन का नहीं है, ये भी झूठ है। तुम उस कुश्ता से निजात चाहे के इस पूरे नौमीदी से मर गया, हजरत इमाम हुसैन का कहीं पर जिक्र नहीं है। ओ भाई, वो कौन था जो नाउमीदी से मर गया? ये आप मुझे ये सुनो मैं बताता हूँ। तुम गुमान करते हो कि हुसैन तमाम मखलूक का, ये हुसैन का ही जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र हो रहा है?
ये उसी को हजरत कह रहा है कि वो इमाम नौमीदी हुसैन से का मर हरगिज़ गया। जिक्र नहीं हो रहा, ये उसका जिक्र हो रहा है जिसको गाली शिया खुदा बना कर बैठे हैं। फर्जी हुसैन, हाँ, तो फर्जी फर्जी यस्सु, है ना। फर्जी मसीह, फर्जी फर्जी मोहम्मद, फर्जी ये अहले बैत, फर्जी ठीक है। सहाबा कह के गालियां दी मीर हैं। साहब, साबित अगर मिल गया, खुदा सबूत मिल फर्जी गया। हो सकता है, अगर खुदा फर्जी हो सकता है, टट्टी करने वाला खुदा हो सकता है, हाँ। पुखाना करने वाला खुदा हो सकता है, टट्टी ज़िना निकल गई करने है, वाला टट्टी खुदा निकल हो गई सकता लोरियां है, ने मुजद्दद दी। खुदा हो सकता है ना समीर साहब, ये देखें हाँ टट्टी भाई कर समीर रहा है साहब, खुदा, समीर पेशाब साहब, कर रहा है ये खुदा, इसको पूछना ये नाचना किसको- कर रहा है खुदा, ठीक समीर है, साहब। औरतों से ज़िना कर रहा है खुदा, हाँ भाई लिवाकत समीर कर रहा साहब, है मुझे खुदा। पूछ के बताना है कि ये देखें, किसको अब कहा बाद गया में कि वो दरमियान में बोल नौमीदी रहे से हैं, लूधियाना हजरत। नौमीदी से मर गया, किसको हाँ, कहा गया? देखें, पूछ के समीर देना। साहब, इमरान पाड़े दी टट्टी निकले, इन्हों पाड़े जरा टट्टी निकले। समीर साहब, देखा है, इसको नीचे उतारेंगे मरजाई को, ये चीखें मार रहा है साथ। समीर ये साहब। सारे मरने वाले हो गए हैं, सारे तैयार है मरने के लिए। देखते हैं कौन मरने वाला होगा। समीर साहब, अगर खुदा हो सकता है फर्जी, खुदा फर्जी हो सकता है, खुदा टट्टी करने वाला हो सकता है, खुदा नाचने वाला हो सकता है, खुदा औरतों से जमा करने वाला हो सकता है, खुदा लवातत करने वाला हो सकता है, अपने साथ लवातत करवाने वाला हो सकता है, मरने वाला हो सकता है, खाने वाला हो सकता है, पीने वाला हो सकता है, तो इमाम हुसैन फर्जी क्यों नहीं हो सकता? लो जी भाई इसका जवाब। अच्छा भाई समीर साहब, देखिए अगर कितना खुदा टाइम लगा फर्जी दिया। हो सकता है, मैं तो सफा ये इमाम पढ़ के हुसैन सुनाता क्यों हूँ, नहीं हो इसको सकता? नीचे उतारे, मैं सफा पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने नहीं पढ़ना, ना, मर जाएंगे। गलत गलत है, जो ऐसे नहीं गालियां होता ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दी हुई हैं, ये नहीं पढ़ेंगे, ये मर जाएंगे। ये लिखा हुआ है इमाम अपनी तरफ से हुसैन एक की नया शहादत सफा। से समीर बढ़कर। भाई, ये गलत बयानी होती है कि सफा यार कोई इसको हो रहा है, चुप कराओ। सफे को छोड़कर एक अगले हवाले की तरफ जाना, ये तो ये दजल नहीं सारी है, गालियां भाई। ही है ना, वो सारी गालियां नबी के तो नवासे को गालियां दी ये हुई मैं है ना आपको मिर्जा दिखा देता हूँ कादियानी कि ने। आपके काबरीन ने इमाम जो हुसैन है को- वो यजीद को इमाम हुसैन से अफजल लिखा हुआ है। अच्छा भाई दिखाऊं जिसने ना लिखा है शुबा उससे दिया, करना दिखा ओ भाई देता हूं। जिसने लिखा है उससे करना बात। हाँ, तो मैं आप नहीं ही है समझता। ना, लानत करें उन लोगों पर जो इमाम हुसैन पर यजीद पर लानत नहीं करते। करनी चाहिए, लानत नहीं करें करनी चाहिए। यजीद पर लानत, अभी नहीं समीर भाई करनी ने चाहिए कहें ना। यजीद पर लानत करें, लानत ना करने वाला कौन होता करें है? यजीद पर लानत। अगर समीर मैं भाई, ना आप करूं- यजीद पर लानत करते हैं? और ठहर जो ना, ठहर जो, समीर भाई, आप यजीद पर लानत करते हैं? आप समीर भाई आप करते हैं यजीद पर लानत? हाँ, इसे लानत- नहीं, अमर नजीर अच्छा को ये अगर भी कोई करें। बंदा, हाँ समीर भाई, अगर कहें कोई अमर बंदा नजीर पर यजीद लानत पर करे, यजीद ठहर जो, ठहर जो, ठहर जो, कहें इसे भाई। यजीद पर लानत इसको करे। चुप कराओ, ओ इसको इसे चुप कहें कराओ भाई, यजीद इसने पर मार लानत जाना है, करे। इन्हें मार समीर भाई जाना ने समीर कहें भाई। यजीद पर लानत करे। इन्हें नहीं बचना, ठीक है, हाँ, करे ना यजीद पर लानत। इन्हें नहीं बचना। नजीर लावा भाई। solo due, sto lavando questi due। समीर भाई, इनसे सिर्फ एक दरख्वास्त करें कि यजीद पर लानत करें। ठीक है, करेंगे, करें अभी जी। करेंगे लानत तो नहीं यजीद पर करें लानत। आमर साहब, करें यजीद पर लानत, इनसे करवाएं ना। समीर भाई ने कहीं करें लानत। हाँ चलो ठीक है, मसरूफ हो गए, अभी आएंगे हम बाद। मसरूफ हो गए लानत करने के लिए मसरूफ हो गए हैं। कहीं इनको लानत करें यजीद पर। पीछे चले गए, अभी आएंगे। सामने है, बेफिक्र हो, सामने है, सुन रहे हैं। इन्हें कहें कि यजीद पर लानत कर, और जो यजीद पर लानत ना करे समीर भाई, उसको क्या कहेंगे? देखते यजीद क्या- को अलैहिस्सलाम कहे। चलो ठीक है, देखते क्या होता है। नहीं अलैहिस्सलाम तो नहीं कह सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी कुतब से। मिर्जा कादियानी भी यजीद पर लानत करने का कायल नहीं था। आप करें, कोई था या नहीं, आप करें। अच्छा अगर कोई लानत नहीं करता तो आप उस करें, पर आप फतवा करें। दो ना। मैं ना करूं और जो ना आप करे उस करें। पर फतवा दिलवाएं भाई। आप करें जो यजीद पर लानत नहीं डालता वो कौन है? वो खुद लानती है। अगर वाकई इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले पर लानत नहीं कर रहे, जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया, जिसने इमाम हुसैन की पूरी नस्ल को कत्ल किया, जिन्होंने इमाम हुसैन की औरतों को गुलाम बना कर ले गए, उन पर लानत नहीं कर रहे। ये है इमाम हुसैन। अच्छा भाई वो सफा दोबारा लगवाएं भाई, इससे पूछें ना, कि इसे वो कहें कौन है, इमाम कुश्ता यजीद किसको पर कहा लानत इस करें। दज्जाल ने? हाँ करें, समीर साहब इसे कहें यजीद पर लानत करे। कुश्ता कौन करें ना है? यजीद पर लानत। ओ भाई ठहर जो ना। यजीद पर लानत करो ना, करो लानत। समीर साहब इसको चुप करवाना है या इसी ने बोलते जाना समीर भाई? साहब इनसे लानत करवाएं। भाई आप चुप करें, अभी आपका टाइम खत्म हो गया है ना, उनको बोलने दे। आप एक हाँ इसको चुप करवाएं, इसको म्यूट करें। समीर भाई मैं लानत आपको तो बताता हूं। करवाएं ना प्यारे भाई, लानत क्यों नहीं करवा रहे? करो भाई समीर लानत। साहब अब ये करो लानत। भाई मेरी यजीद बात पर सलीम लानत वकील करो। ने पढ़वा दो ना, ये टॉपिक चेंज कर रहे हैं आप। ना हाँ, हाँ, ना ये टॉपिक इसलिए चेंज कर रहे हैं अब कि वो आया आखिरी ना 3 उल्फा लाइनें हैं ना। नीचे। ये सारा वो जो दज्जल है आखिरी- समीर भाई, सारा दज्जल है आपके सामने आ गया है। अब सारी किताब आपके सामने खुली है। यजीद को मानने वाले इमाम हुसैन की इज्जत का केस लड़ेंगे, सोच सकता है कोई बंदा? जिस यार, समीर वो यजीद ने तीन आने इमाम पढ़वाओ हुसैन यार, के ये बातें पूरे चेंज कर रहा है, खानदान वो को तीन आने शहीद पढ़वाओ कर यार। दिया, जिस यजीद ने पाक बीवियों को, अहले बैत को,
جو ہے وہ قید کیا، ان کو جو ہے نا غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا، اس پر لعنت نہیں کرنے والا یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا فلانے نے قادیانی امام بھی، حسین کی میں توہین اگر کر دی، ثابت فلانے کر نے دوں کہ توہین مرزا کر دی۔ قادیانی بھی لعنت نہیں کرتا اور تھا بھائی تم یزید کرو پر، نا، کوئی کرتا اگر تھا میں نہیں، ثبوت تم دے کرو، دوں تو اس پر تم جو کرو، یزید پر تم کرو، بھائی تم کرو، تم ایسا کیوں نہیں کر الٹیمو رہے؟ کرو ماں یزید پر لعنت، فچendo ultimo کرو نا یزید پر لعنت، تم کرو، کوئی نہیں کرتا تھا، فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، اچھا بھائی وہ میں یہ غازی نہیں کہہ احمد رہا، کا تم صفحہ کرو، پڑھانا ہے کہ نہیں اسمیر بھائی کہ میں تم پڑھ کے کرو، دوں آپ کو؟ کیس تم سامنے لے کر یہ آئے تو ہو کہ نہیں، امام یہ تو نہیں حسین کی بچے گا، توہین اس کو ہوئی تو ہے۔ نیچے اتار دے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں وہ سمیر والا بھائی یہ صفحہ۔ بتائیں کہ یزید سے بڑھ کر کوئی امام حسین کی توہین کرنے اس کی والا تھا مرتبہ دنیا ہو میں؟ رہی ہے، اس کو نیچے اتار دے یار، یزید، میں پڑھ کے سناتا ہوں وہ سمیر صفحہ۔ بھائی یزید سے بڑھ کر کوئی امام حسین کی توہین کرنے والا ہے دنیا میں؟ یار آخری 3 لائنیں پڑھوا دو سمیر۔ سمیر بھائی یار یزید آخری سے 3 بڑھ لائنیں کر، پڑھوائے نا۔ یزید سے بڑھ کر، سمیر بھائی آپ سے ہے، یزید سے بڑھ کر کوئی ہے جو توہین کرنے دوسرا والا ہے یہ کہ امام اس سے حسین کی؟ پوچھنا کہ یہ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر ملا لطیف لعنت کرو، مردود کی موت جس کو نے مانتا ہے۔ پوچھنا پہلے یزید پر لعنت کرو، ہاں کرو بھائی، یزید پر لعنت۔ ہاں بھائی دیکھو سمیر صاحب، بھائی، ایک منٹ، یہ میں حوالہ نا، آپ کی آنکھوں کے دیکھو سامنے لگا دیکھو ہوا ہے۔ بھائی، میں اپنی طرف سے میں لعنت بھیجتا ہوں اس شخص پر جو اہل بیت کی توہین کرے، اور میں اس پر بھی ہاں لعنت بالکل، بھیجتا ہوں جو یزید کی طرفداری کرے۔ باقی جو آپ دونوں آپس میں، ہاں بالکل۔ اچھا اب ایک سوال ہے سمیر بھائی، مجھے اس سوال کا جواب لے کے دینا ہے کہ یہ جو سمیر سامنے بھائی، لکھا ہوا ہے، انہوں نے سوال یار چپ پوچھنا کراؤ اس پہلے کو، یزید پر 1.5 لعنت گھنٹہ کرو۔ ہو گیا بولتے آپ ہوئے اس پوچھیں، کو۔ آپ نے یزید پر لعنت کی ہے، آپ پوچھیں۔ بھائی سمیر اس صاحب نے اس مجھ کو سے چپ کرانا پوچھنا کہ نہیں کرانا؟ سوال تو یزید پر لعنت کرے، اگر اس نے سمیر صاحب، یزید پر لعنت نہیں کرنی تو مجھ سے سوال نہ پوچھے۔ سمیر حضرت صاحب امام چپ کرا حسین کا سکتے ہو کہ نہیں سب کرا سے بڑا سکتے؟ گستاخ، سب ٹھیک ہے بھائی عمران یار یہ چپ ہی نہیں کر صاحب رہے۔ بول دیے، 1 گھنٹے سے بولی جا رہے ہیں، اب ان کو بولنے دے، ٹھیک ہے، ان کا ٹائم ہے، ہاں، بولے۔ جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو 3 لائنیں آخری تھیں وہ نہیں پڑھے گا، اس کی مرتبہ ہو جائے گی، وہ 3 لائنیں نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ حسین ابن علی وہ نومیدی سے مر گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بھی وہاں جھوٹ لکھا ہے۔ ہوا ہے کہاں پر حسین ابن علی کا نام لکھا ہے؟ دجل، جھوٹ دکھاؤ یار نام، اس کو چپ کراؤ، نہیں تو اس کو نام نیچے اتار دکھاؤ، دو، اس نے جھوٹ مار کیوں جانا بول رہا ہے، ہے؟ سمیر اس بھائی کا جھوٹ اٹیک کیوں ہو بول رہا جانا ہے ہے، اس نے؟ سمیر بھائی اس کو نیچے اتار دے یار، نہیں یار وہ آپ چپ کر رہ سکتا اب۔ بولنے دینا ان کو سمیر یار۔ بھائی جھوٹ تو نہ بولیں، کہاں اب پر یہ اب نام کھتی لکھا ہوا اترنے ہے؟ لگی ہے تو اس کو نیچے اتار دو نا، نہیں اس نے بیچارے نے دیکھ سکنا اپنی آنکھوں نہ سے۔ یہ دیکھیں کہ مجھے بات یہ اکیلے ہے، کو بولنے دو، بات یہ ہے، کسی کو نہ بولنے دو، میں جھوٹ وہ بولتا بھائی رہوں۔ 1.5 گھنٹہ یہ بولتا رہا ہے، تو اور وہ یہاں یہ لائنیں کہاں پھر پر بھی نہیں پڑھ عامر کے نذیر سنائی۔ صاحب یہ آپ نے کیوں جھوٹ وہ بولا ہے؟ نام دکھائیں کہاں پر لکھا ہے؟ آخری 3 لائنیں اس نے پھر بھی نہیں پڑھ کر سنائی۔ کیوں نہیں آپ بولنے لگ گئے تھے؟ بھائی آپ چپ کراؤ یزید گے پر اس کو؟ لعنت نہیں کر رہے، کرو یزید پر لعنت اگر اتنی او امام حسین سے محبت ہے تو۔ او بھائی ہیلو چپ کرو یار، ضمیر صاحب، چپ کرانا اس کو کہ نہیں کرانا یار؟ جی بات کرے بات ناظر بھائی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے لکھا ہوا ہے آخری 3 لائنوں میں کہ امام حسین علیہ السلام نومیدی سے معاذ اللہ مر گیا، وہ جو دشمنوں کا کشتہ تھا، اور کہتا ہے وہ دشمنوں کا کشتہ تھا، میں خدا کا کشتہ ہوں، میں خدا کا مارا ہوا ہوں، فنا فی اللہ ہوں، وہ دشمنوں کا مارا ہوا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے امام حسین کے بارے میں، وہ یہ باتیں نہیں پڑھ کے سنا سکتا، اس کی مرتبہ ہو گئی ہے۔ اب اس سے صرف آخری بات یہ پوچھ دو کہ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر ملا لطیف کی یہ لکھا ہوا ہے کہ موت ہے، جس کو امیر کابل نے مروا دیا اور وہ انگریزوں کی جانیں بچاتا بچاتا مر گیا، وہ انگریزوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دینے والا، اس کی موت کو امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر مانتا ہے یا اس پر لعنت ڈالتا ہے جس نے یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ بس اتنا جواب لے دو، بات ختم کریں۔ کیا میں نام تھا بھی اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام ملا کیا؟ لطیف، یہ عبد الطیف سامنے لکھا ہوا ہے، مولوی عبد الطیف سامنے لکھا ہوا ہے سبز لائن میں، جی پوچھوں گا اس کا میں۔ جواب لے کے دینا۔ جی سمیر بھائی یزید پر لعنت کروا عمران لیا۔ بھائی بات کیا ہے کہ کیا آپ عبد اللطیف صاحب کی شہادت کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے اونچا مانتے ہو یا نہیں؟ اللہ جانتا ہے، یہ اس کو پوچھو کہ کیا یہ حضرت ہاں اس کو پوچھو کہ حضرت عثمان کی شہادت کو امام حسین کی شہادت سے افضل مانتا ہے یا کم مانتا ہے، یہ بتائے نا۔ حضرت عثمان کی شہادت حضرت امام حسین سے افضل تھی یا کم تر تھی؟ بتائے۔ کس کی؟ حضرت امام حسین کی شہادت جو تھی حضرت عثمان کی شہادت سے افضل تھی یا نہیں؟ بتائیے۔ ہاں دوسرا، جو بندہ حضرت امام حسین کے سب سے بڑے دشمن پر، جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا۔ عمران صاحب بات امیر بھائی غلط ہے نا، آپ اب یہ سوال کا جواب دیجئے، پھر میں یہی سوال ان سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ جی کیا آپ عبد اللطیف صاحب کی شہادت کو امام حسین
علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے اونچا مانتے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کون افضل ہے کون نہیں، ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ہم انسان ہیں، ہم کیسے بتا دیں؟ اچھا، تو یہ مرزا صاحب جو لکھا ہوا ہے یہاں پر، کہاں پر لکھا ہوا ہے میرے یہ ساتھ؟ لکھا ہے کہ ان کا پورا شہادت مضمون ہے، وہ پورا مضمون پڑھیں گے تو اس میں دیکھ لیں گے کیا لکھا ہوا ہے، ایک لائن سے تو نہیں کچھ بھی پتا چلتا نا، پورا مضمون ہے، جب ٹھیک ہے، مضمون وہ پورا ٹھیک ہے، پڑھیں گے نصیر بھائی تو پڑھ ہم لے بتائیں اس گے۔ کو، پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، پورا مضمون ہے وہ پڑھیں گے تو بتا دیں گے، پھر آپ کہیں گے جلدی ہے جلدی ہے، میں تو پورا مضمون کھول کے پڑھوں گا، دیکھوں گا کیا ہے۔ دوسرا پڑھ لیں۔ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اسی طرح یہ بتا آپ دیں، کہتے ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا شہادت اونچا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اللہ آپ یہ نہیں جانتا ہے، کہتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ لیکن مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے بھی یہی نہیں کہا، مرزا صاحب نے بھی کہا درجات اللہ جانتا ہے، او بھائی لکھا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ لکھا ہوا، پورا صفحہ پڑھیں گے آپ کو سارا نظر آ جائے گا، پورا پڑھ کے سنا دوں گا میں، وہ مضمون میں آپ کو پورا پڑھ کے سنا دوں گا۔ مین بات یہ ہے سمیر بھائی کہ جو شخص حضرت امام حسین کے سب سے بڑے دشمن پر لعنت نہ کرے، جس نے حضرت امام حسین کو قتل کروایا، جس نے حضرت امام حسین کے خاندان کو جو ہے نا وہ غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا، اس پر جو لعنت نہ کرے، وہ کہ فلاں نے کہہ دیا کہ فلاں کی شہادت افضل ہے، فلاں کی شہادت، اس سے امام حسین کی توہین ہوگی، وہ جو قتل کرنے والا ہے امام حسین کو اس پر لعنت نہ کرے سمیر بھائی، وہ کس طرح حضرت امام حسین کی عزت اور نموز کی بات کر سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا۔ دیکھیے میں تو امام حسین علیہ السلام، امام حسین کا قاتل لعنتی ہے، امام حسین کا قاتل لعنتی ہے، لعنتی ہے، لعنتی ہے۔ یہ تو جس یزید نے کو امام قاتل بھی حسین نہیں کو مانتا، قتل کیا ہے، یہ تو سن لو یزید بھائی، کو اب چپ قاتل کراؤ بھی اس نہیں کو، مانتا، اس کو چپ کراؤ مرزائی کو، یہ تو امیر یزید صاحب کو قاتل بھی نہیں اب یہ مانتا، چپ کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ کہے اس کو کیا ہو یزید پر گیا؟ لعنت۔ اس کو بھائی کیوں نہیں خاموشی ہو رہی اس کو؟ دیکھیں کیا مسئلہ میں ہو نے گیا؟ آپ کو اسی طرح کہا تھا اس سمیر کو بھائی چپ کہ اس کراؤ کو سمیر خاموش صاحب، کرواؤ، یہ آپ نے پورا مکمل سمیر بولا ہے، صاحب اس کے بعد میں بولا ہوں۔ اس کو چپ کراؤ بھائی، سمیر صاحب میں ڈالنے لگا۔ نہیں سمیر صاحب مجھے کیوں چپ کرواؤ، میں نے کہا تھا ان کو چپ کرواؤ۔ اگر اس نے نہیں چپ کرنا سمیر صاحب تو بات کیسے ہو سکتی بھائی جان؟ سمیر بھائی آپ چپ کرو بتائیں نا کہ آپ نے سوال پوچھا مجھ سے، سوال پوچھا کہ بھائی، نہیں؟ چپ کرو چپ کرو، دیکھو اچھا میں نے کہا تھا اس کو چپ کرواؤ، اچھا نذیر یہ تو نان یہ ایک صاف ہے سوال نا، لگا میں ہوا نہیں سامنے، کہتا اس کا کہ جواب دیا چپ اس نے، کرواؤ، اور یہ آپ کو ڈکٹیٹ یہ کرتا کہہ ہے رہے مرتا مر جائے گا، اس کا جواب نہیں دے گا۔ یہ میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ عبداللطیف کی صاحب کی شہادت کو آپ امام حسین صاحب، امام حسین علیہ السلام کی تو میں نے شہادت سے کہا ہے اونچا مانتے شہادتوں ہو؟ کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے، میں کرنے والا ہوں۔ یہ کہہ رہے کہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اگر یہ اس کا مطلب ہے کہ مرزا قادیانی کو یہ نہیں مانتا نا، جو مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ امام حسین نے صداقت اور صبر کا، استقلال کا وہ مظاہرہ نہیں کیا جو اس نے کیا ہے ملا لطیف نے، اس لیے ملا لطیف کی موت حضرت امام حسین کی اور شہادت سے یار بڑھ سمیر کر ہے۔ بھائی ایسے کوئی بات اس کا نہیں مطلب اس کو پتا، اس کو نہیں پتا، اس کو نہیں پتا اپنے نبی کی بات کا، جس کو یہ او نبی سمیر مانتا بھائی ہے ایسے کوئی بات نہیں وہ کہتا ہے، نذیر بھائی دیکھیں، جس کو سمیر یہ بھائی، نبی مانتا ہے بھائی وہ کہتا ہے کہ امام حسین کی شہادت سے سمیر بڑھ کر بھائی، ہے اس کی، یہ سمیر کیوں بھائی، نہیں کہتا؟ یا کہے کہ جس نے سمیر ایسا لکھا ہے وہ بھائی رک لعنتی ہے، جائیں، اب یا اس پہ لعنت ڈلوائیں۔ نذیر بھائی وہ کہہ رہے اب ہیں جواب لینا ہے آپ نے سمیر بھائی؟ ہاں وہ جی لیں عمران اب۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے ہرگز ایسا نہیں کہا ہے کہ لطیف صاحب کا شہادت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے اونچا ہے، یہ نہیں کہا ہے مرزا صاحب نے، یہ بول رہے ہیں۔ بھی سنیں سمیر بھائی، بات یہ ہے کہ جب تک پورا مضمون آپ نہیں پڑھیں گے، ایسی ایک لائن آپ اٹھا کر اپنی طرف سے ایک منطق بنا کر کسی پر جڑ دیں، یہ درست ہے؟ اور ابھی تک انہوں نے کیوں نہیں یزید پر لعنت کی؟ میں نے ان کو پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھیں اگر خدا فرضی ہو سکتا ہے نا، خدا فرضی، یار مجھے آپ نے میوٹ یار کر یہ دیا، دیکھیں آپ مجھے مجھے آپ نے بولنے میوٹ نہیں کر دے دیا، رہے بات پلیز۔ یہ ایک گھنٹے سے تو یہ بولا جا رہا ہے سمیر بھائی، سمیر اگر بھائی اسی میں نے ایک بولنا ہے، منٹ بھی نہیں بولا، ہمارا کوئی میں کام نے اپنی نہیں ہے۔ بات بھی نہیں کی، اس نے پوری تک اس نے نذیر صاحب وہ یہ کہہ رہے کہ مرزا صاحب نے ہرگز نہیں کہا ہے کہ لطیف صاحب کا سمیر شہادت بھائی، امام حسین علیہ سمیر ایک السلام منٹ ایک منٹ، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھنا سمیر ذرا، بھائی یہ دیکھ رک کے جا، بتانا کیا لکھا سمیر ہوا ہے۔ بھائی ایسے نہیں میں ہوتا، پورا پڑھ کے غلط ہے، سناتا ہوں، یہ اس کو غلط چپ ہے کراؤ، سمیر بھائی، اس کو آپ چپ جو ہے کراؤ، نا میں وہ پڑھ کے غلط سناتا کر ہوں، رہے ہیں۔ چپ کرو بھائی، میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس کو چپ کراؤ۔ وہ پورا سنا رہے ہیں آپ کو، وہ پڑھ رہا ہے آپ کے لیے ہاں پورا کا پورا۔ میں سناؤں گا نا، میں سناؤں گا، یہ دیکھیں تو پھر سنائے، اس یہ کتاب کا نکال نا کے سنائے۔ صفحہ اوپر ہے کہ یہ کون ہاں سی کتاب ہے۔ ملفوظات ہاں تو ہمیں کیا پتا ہے آپ نے کہاں سے لگا دیا ہے ملفوظات، ہاں ملفوظات کہاں سے کون سے لگا دی؟ ملفوظات، کون پھر سا مجھے صفحہ؟ پتا، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ نہیں آپ کیسے پڑھ کے سنائیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں، ہمیں کیا پتا کہاں سے پڑھ کے او سنا بھائی رہے ہیں؟ ملفوظات ہے، دوسری جلد ہے، ہاں 364 کھولیں گے تو صفحہ ہے۔ دکھائیں گے نا، کھولیں ہاں جی کھولیں۔ یار اس کو چپ کراؤ یار، یہی یار کام ہے سمیر کرنا، بھائی مطلب سارے ٹائم دن لگائیں، ان کا ٹائم لگائیں، ٹھیک ہے اس کی مطلب ہاں، جان جا رہی ہے۔ اس اب کا یہ ٹائم دیکھ کر لگائیں۔
इसकी जान जा रही है, जान ये तो देख कर आपकी जा रही आंखों है। के सामने लिखा हुआ है, आंखों के सामने लिखा हुआ है कि इमाम हुसैन की शहादत से मीर बढ़कर भाई टाइम लगाए ना उस पहले मुल्ला प्यारे भाई। मरतूद की मौत थी जो लानती इसलिए मर गया यार अंग्रेजों ये की जान देखें बचाने के लिए। बकवास का टाइम लग गया है। अंग्रेजों की जान बचाने के लिए मीर भाई जो ये मरा, देखें वो बकवास इमाम कर रहा है, हुसैन से इसको अफजल कहें हो कि सकता गालियां है। क्यों दे रहा है ये लो जी, गाली दी है इंसान। जो अंग्रेजों की जान बचाने ये के लिए गालियां मरा क्यों दे है, रहा है समीर भाई? आप जो गुजरात का अंग्रेजों ये की माहौल है जान कि आप बचाने गालियां के लिए दिलवाते मरा हैं है। दूसरों के काबरीन ओ को। भाई गाली मत दो, आप किसी के काबरीन को गाली ना दो, ठीक है? भाई गाली किधर दी है यार? आप भी उस बात सुन के शुरू हो जाते हो, किधर दी है गाली उन्होंने? ये लानती कह रहा है, लानती कहना गाली नहीं है। लानती मत कहो, हाँ लानती मत कहो, ठीक है? जो बात मैं कह सकता हूँ आपके काबरीन को फिर ये? हरगिज नहीं, हम इधर गिनी समीर भाई आपने सुनी है? आपने कोई गाली सुनी है? जी सुनी है। समीर भाई आपने सुनी है? हाँ जी सुनी है। अभी बोला ना उन्हें, अभी इन्होंने बोला इमरान साहब ने कि उन्होंने वो गाली दे रहे हैं हमें। आपने सुनी है कि नहीं सुनी? नजर साहब आपने नहीं सुनी तो उनको बात आमिर भाई आप सफा पढ़ें जरा। मैं ये कह रहा हूँ कि गाली गुली कोई नहीं दी, जो अंग्रेजों की जान बचाते हुए मरा है उसके बारे में ये कहना कि वो इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर है, ये इससे बड़ा झूठ जुल्म है कोई ना, और हो अपनी सकता तरफ से है? झूठ बोलते जा रहे हैं। ये आपकी आंखों के सामने सबसे क्या पहले लिखा हुआ समीर है? भाई इनको कहें कि वो हवाला पूरा दे, मैं सामने खोलता हूँ, उसके बाद ये पढ़े। और ये मलफूजात है, जिल्द दूसरी सफा 364 सामने लगा हुआ है। जी मैं नहीं ना, कहाँ लगा हुआ है? सामने लगा हुआ है ये अपने को। तो 2 मिनट इनके लगा दें समीर भाई, 1 मिनट या 2 मिनट जितना भी देना है उतना टाइम दें उसको, कहीं पढ़े। मतलब इसको 2 घंटे बुलाया है, मुझे 2 मिनट दे दो भाई, मैं बोलूं 2 मिनट है। जितना 2 घंटे टाइम मुझे बोलता देंगे, रहे जितना और आपको आखिरी देंगे 3 उतना लाइनें मुझे इसने देंगे। नहीं पढ़ी, आखिरी 3 लाइनें इसके लिए मौत बन गई, वो नहीं पढ़ सका मैं और फिर कहता है पढ़ देता हूं। कि इसको 2 मिनट दो। हद नहीं होगी? करो बात नजीर भाई, करो बात, आप बात करो। यो जो कहता था कि मुझ में और तुम्हारे हुसैन में बहुत फर्क है, मुझे तो हर वक्त खुदा से मदद मिलती रहती है और हुसैन याद कर लो, अभी तुम करबला को याद करके रोते हो। जो इमाम हुसैन के बारे में ये कहता था कि भाई इमाम हुसैन को मदद नहीं मिलती थी, मुझे मदद हर वक्त मिलती रहती, इमाम हुसैन को वहां मदद नहीं मिली, देखो अभी तक तुम याद करके रोते हो, करबला को याद करके रोते हो। आप भी क्या नाम है समीर भाई, रोते हो ना? वो कहता है मुझे तो हर वक्त मदद मिलती है, इमाम हुसैन को तो देख लो, याद कर लो कि तुम अभी तक रोते हो करबला को याद कर करके। जो बंदा इतनी तौहीन करे उसके बारे में कोई बंदा सोच सकता है कि ये कोई मतलब है कि इसने तौहीन नहीं किया या इसकी कोई गुंजाइश निकलती है, नरमी की गुंजाइश इसके लिए निकलती है। बहरहाल ये सफा जो लगाया हुआ है ना आपकी आंखों के सामने, इसमें ये लिखा हुआ है, अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर मुल्ला लतीफ की। हाँ पढ़ दो, बहुत मोटा लिखा हुआ, कोई भी पढ़ दे। किताबों में ये मैं पूरा सफा पढ़ने लगा। हाँ पहली किताबों में पेशन गोई दर्ज थी कि नबी आखिरुज़्ज़मान किसी के हाथ से कत्ल होगा। अलावा अज़े फजीलत का मामला अल्लाह ताला की किताब से साबित होता है। खुदा ताला की पाक किताब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल करार दिया। इमाम हुसैन ने यह कहीं दावा नहीं किया कि मैं सबसे अफजल हूँ, ना उनकी किसी तहरीर और ना किसी तकरीर से ऐसी बात जाहिर होती है। वो तमाम उम्मत से अफजल हैं, होती है कि वो तमाम उम्मत से अफजल हैं। और अगर उनका कोई ऐसा दावा होता तो तब भी मानने के काबिल ना था कि क्योंकि कुरान शरीफ के बरखिलाफ था। और आगे ये बात समीर भाई अब शुरू होने लगी है। इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर हजरत मौलवी अब्दुल लतीफ की शहादत, जिन्होंने सिदक और वफा का आला नमूना दिखाया और जिनका तल्लक शदीद बवजह इस्तकामत सबकत ले गया। रुक जाए जरा, आपका क्या ख्याल है भाई समीर भाई कि इमाम हुसैन का सिदक और वफा का कोई जोड़ हो सकता है? कोई लानती ये दावा करे कि उनसे बढ़कर सिदक और वफा का नमूना इस बंदे ने दिखलाया है, कोई इमाम हुसैन से बढ़कर वफादार हो सकता है? हरगिज नहीं। जफा की तेग से गर्दन वफा शारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं, वो है इमाम हुसैन। इन लानतियों ने कहा कि इमाम हुसैन से बढ़कर इसने सिदक और वफा का नमूना दिखलाया। समीर भाई फिर गालियां दे रहे इन पर लानते डालो, ये आगे आपसे फेवर लेने, जो कहते हैं इमाम हुसैन से बढ़कर वफादार कोई हो सकता है। ये गालियां दे रहे हैं। अब ये गाली दी है मैंने, जो इमाम हुसैन से कहे वो अल्फाज इस्तेमाल ना करे जिनका दिल आजारी हो। हम इल्मी गुफ्तगू, इल्म से शिकस्त दे, इल्म से सबके सामने इनको शिकस्त दे
चलो ये भी लानत का आपको- मुतालबा कर लेते हैं ना, अब लानत डाल दें, जैसे कल वो मुतालबा कर रहा था कि लानत डालो, ऐसे लानत डाल दे ये लिखने वाले पर। जो मुतालबा मेरा देखिए, वो कलेजा मुतालबा फटा जा माना। रहा है, मुझे तकलीफ नहीं हो रही इमाम वो हुसैन को मुतालबा तलगी माना बात पढ़ के। जी समीर भाई आप मुझे मौका देंगे? मेरी बात सुन ले पहले, ये हमारा इसको चुप मुतालबा कराएं ना करो, अब। पहले लानत डालो इमाम हुसैन की से शहादत लेकिन दो हासिल जो बंदे करो। बंदा बोल ये लानत कहता डालो, है, पहले सुने अब, सवाल कर सुने लेना। सुने सुने सुने, नहीं भाई सारे खामोश हो जाए। बात ये है कि जो बंदा ये दावा कर रहा है कि सिद्क और वफा का जो नमूना मुल्ला लतीफ ने दिखाया है वो इमाम हुसैन से बढ़कर है, उसको क्या कहूं मैं? उसके लिए मैं कौन सा लफ्ज बोलूं? समीर भाई आप बता दें। जो जी इस तरह समीर भाई हो गई है इनकी बात, अब मौका दें। एक मिनट यार, मुझे आपसे फैसला करवाना है समीर साहब। यार उनसे बाद में फैसला जो करवाते सिद्क और हैं ना। वफा का नमूना इमाम हुसैन ने मैदान करबला में दिखाया भाई ये चाहते हैं आप गाली जो दें कहता है और माहौल कि उनसे खराब बढ़कर करें। किसी ने दिखाया है। समीर भाई आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? आप क्या कहोगे उसको? वो किसी शायर ने नहीं कह ली कि इमाम हुसैन के लिए लिखा है कि जफा की तेग से गर्दन वफा शारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। और जिसकी गर्दन झुकी नहीं है दुश्मनों के सामने, उसके बारे में अगर कोई बदबख्त ये कहे कि उनसे बढ़कर फलां बंदे का सिदक और वफा का नमूना है, आप कहते हैं हमारे दिल को तकलीफ होती है। हमारे दिल कोई नहीं, हमारे सीने में दिल कोई नहीं, हमें इमाम हुसैन से कोई प्यार नहीं। ये बकवास करें इमाम हुसैन के बारे में, हमें तकलीफ नहीं होती। हम इनको कहें कि ये बदबख्त हैं, ये लानती हैं, इनके दिल को तकलीफ होती है, इसलिए कि इनका दिल जो है ना वो मोम का बना हुआ, हमारा लोहे का समीर बना भाई हुआ है। आपने इनके नजीर 2 साहब। मिनट लगाए थे और 5 मिनट हो गए हैं प्यारे भाई। जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करे, लानत उस पर, लानत उस बेशक ज़ात बेशक पर, लानत लानत ठीक है। लानती है, लानती है, हराम ज्यादा है ठीक जिसने है, ये बकवास बेशक किया है। बेशक वो इमाम लानती है, हुसैन से हराम बढ़कर वो लानती से बढ़कर है, वो लानती है, लानती ये बात हरामी है। करवानी आप देखो, समीर भाई हमारी कहता है ये सुनो, अभी सफा पढ़ने दो, नजर पूरा पढ़ सफा। मैं खुद मैं पूरा ड्राइव कर रहा पढ़ूंगा। हूँ, मैं खुद पूरा पढ़ो पढ़ो। एक मिनट मैं ना समीर भाई जैसा ये है। गलत हो रहा है ना, 5 मिनट सफा आपने पूरा ले पढ़ने लिए। दो। ठीक है, सफा अवैस पढ़ेंगे। भाई, अवैस भाई पढ़ देने, अवैस भाई पढ़ देने। पहली बात, इन्होंने जो सफा लगाया है वो मलफूजात में से नहीं है, इनको कहें हवाला दें। इन्होंने कहा मलफूजात की जिल्द 2 में है ओ भाई सफा। हम वो पढ़ने लगे थे, वो सफा तो नहीं पूरा पढ़ने दिया समीर भाई। इसको समीर भाई भाई हवाला ही नहीं है, बोलता दिखाएं जा रहा है। इनको कहें मलफूजात में कहाँ है। भाई नजीर साहब, अगर वो मलफूजात में से नहीं है तो वो क्या है फिर? मलफूजात का कहाँ है हवाला- मलफूजात? ये देखे मैंने खोली हुई है, मलफूजात जिल्द 2 कहें दिखाएं हवाला। ठीक है, क्या ये वही सफा है? क्या ये हाँ, वही सफा जो है? इन्होंने जो सामने लगाया है 261, मैंने तो खोला है, 261 पे दिखाएं कहाँ है ये। नजफ भाई, क्या ये वही सफा है या नहीं? हाँ दिखाएं यहाँ पर 261 पे। और मेरी स्क्रीन बड़ी करो, नजर आ जाएगा मेरी स्क्रीन से सफा। ना यार आपकी स्क्रीन से क्यों दिखाएं? मैंने किताब खोली है, सफा मैंने दिखाओ। ये 261 तो सफाई मैंने नहीं कहा। आप ये सामने लगाया, आपने कहा तो यार बड़ा तो करो। 261 ऊपर समीर लिखा हुआ है, साहब, क्या लिखा हुआ है? समीर साहब मेरी स्क्रीन बड़ी नहीं कर सकते आप? ओ भाई, समीर भाई। आप हवाला का रेफरेंस दो, ये खोलेंगे अपने कंप्यूटर से। जी, मैं अपनी 340 सफा, तीसरी जिल्द का 340 सफा इनको को खोलो। अब तीसरी आ गई है। हाँ, समीर भाई क्योंकि ये इन्होंने- बदलते रहते हैं ना मलफूजात के सेट बदल, पहले 10 जिल्दें फिर 5 जिल्दें। तीसरी भाई- जिल्द का समीर भाई 340 346 आपने इनको निकालो। 5 मिनट से ऊपर हो गया है टाइम, 6 मिनट। ओ भाई हमने 2 तो घंटा मिनट पूरा और दे सुनी दें। है इसकी तकरीर है। यार आपकी तकरीर मैं सुन रहा हूँ, तीसरी तकरीर जिल्द का आपने कब 300 की ओ है? भाई इमरान साहब, आप वॉल्यूम 3 पेज 346 मैं निकालिए खोल और वो पढ़ लीजिए, ठीक है? पहली बात ये वक्त समीर जाया भाई, ना अब सुन करें। लेना, मेरा जवाब भी तो सुन लेना। आपने मेरा जवाब नहीं सुनना, मैं वो भी खोलता हूँ, मैं पूरा खोलता हूँ और फिर उसके बाद हमारा जवाब भी तो सुन लेना प्यारे भाई। फैसला करने से पहले आपकी अपनी तहकीक होनी है, आप खुद पढ़ें, खुद तहकीक करें। मैं जो मानता हूँ मानता रहूं, आप अपनी तहकीक करें। 361 उस पर भी आ जाते हैं। कौन सा है? 361 ही है ना? 346 जल्द 4 346 3 बार बताया है। आमर भाई हवाला ये है कि मलफूजात का 5 जिल्दों वाला एडिशन जो है ना, उसकी चौथी जिल्द का सफा 364 346 5 जिल्दों वाले चौथी का edition 364 हाँ 5 जिल्दों वाले का, लेकिन ये 10 जिल्दों वाला ये रखा हुआ है पता ना। नहीं है क्या हो गया इनको। और भाई ये जो कभी अभी 3 ये कभी अपनी 4 वेबसाइट कभी से 5 हवाला है भाई नहीं है। मलफूजात जो है के साथ बदतमीजी आपने कर बदले रहे है ना, कोई आपने बदले है ना अपनी ये साइट पर। मलफूजात 5 जिल्दों वाला सेट है कि 10 जिल्दों वाला? पता नहीं कौन सा है, आप कौन सा लेकर बैठे हुए हो। जो 10 जिल्दों वाला है उसमें तीसरी जिल्द है, जो 5 जिल्दों वाला है उसमें चौथी जिल्द है। चलो जी, पता नहीं अभी। पता नहीं की कर दे फिर दे। अच्छा, ये 10 जिल्दों वाला है, 10 में कौन सी है? चौथी। तीसरी। देता हूँ। ये जानबूझ के ड्रामा कर रहा है, जानबूझ के। और कौन सी, कभी तीसरी कहते हो कभी चौथी कहते हो।
तीसरी जिल्द है 346 पेज निकालो तीसरी ये जिल्द का भी तीसरी खोल ली है, तीसरी 346 सफ़ा खोल लीजिए आप। 346 खोल लिया। जी अब मुझे भी इतना टाइम मिलेगा जितना इनको मिला है या कि इन्होंने शोर करना है? नहीं आप बोले हमने तो कुछ भी नहीं, हम तो एक सफा भी नहीं पढ़ के सुनाया। हाँ, जो तकरीर की है। ओ भाई चुप करे, आपका खत्म करे जी अब सुने हमारा ये है जी 346, यहाँ पर कहाँ पर है? ये कौन सी जिल्द खोली है? तीसरी। चौथी का खोल के देखो, चौथी का, क्योंकि आपके साथ ओए, बदले हैं ना। जाओ पहलू करूं जाके और सफा लाभ कौन ले सा आओ। कौन सा सेट है? 5 जिल्दों वाला कि 10 जिल्दों वाला है? 10 जिल्दों वाला कि 5 जिल्दों वाला 10 सेट जिल्दों है? वाला है, 5 जिल्दों वाला है। जब तुम बदलते रहते हो अपने जिल्दों के तू ही सेट बदल दियो, 10 वाली तो तू ही एक बदल दफा दिया। एक दफा कोई 10 हवाला जिल्दों नहीं वाला देंगे सेट तुझे। बनाया, एक दफा 5 जिल्दों वाला तकरीर सेट करी बनाया, जान तो फिर वहां से सफा कैसे मिलेगा? एक मिनट, अगर एक मिनट। सफा ना मिला एक मिनट। हम जुर्माना देंगे। जुर्माना देंगे, जाओ लब ले आओ पहलू। इमरान कालू ये वो एडिशन नहीं है, उसके ऊपर हेडिंग नहीं लिखी हुई कि ये मलफूजात हैं। कितने ठीक है की ना? लिखी हुई है? मलफूजात है की ये? जो बात मैं बता रहा हूँ 5 जिल्दों वाले एडिशन में ये हेडिंग नहीं है ऊपर सफे के। हवाला लब ले आओ। जाके ना खोल के साहब साइडें चेक कर अपनी, कितने एडिशन के इसके साल के छपे हुए पड़े हुए हैं। ते उसी तुसी किसी लबने की के मैं जल्दी लबदा पड़नी फिरा। भाई ऐसी तो लाए हैं ना सामने सफा, वो टेढ़ा पता नहीं किथों ला लिया जे अपना ही कोई हाँ, करूं पता नहीं किथों ला लिया सी घर घर के लैंड करूं बनांदे हो। मैं ਤੁਹਾਡੇ मलफूजात दा ए सफा ना निकलिया। देता हूँ समीर भाई बड़ी स्क्रीन करें यार, तू ये निकलेगा अगर ना, दोबारा वो देखने गल दे करियो। सफा। अगर ना भाई ये हवाला इनका- देन पहलू पूरा, फिर अगर इनकी किताब का सफा ना हुआ हम जुर्माना देंगे। हमने यार अपने सानू नहीं पास पता है वे कि नहीं, जदू लाओगे ना उदू गल करियो। भाई बड़ी स्क्रीन करें समीर यार। अगर इमरान समीर साहब भाई यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ऊपर, कौन सी किताब है? ये देखें जरा क्या सफा लिखा हुआ है यहाँ पे, 364 है ना? हाँ यार नहीं एक मिनट है जो यार, मुझे दूसरे मोबाइल से देखने दो। एक तो अब शोर मुझे बहुत- बात करने दें। एक मिनट चुप करा, मैं इसको सही वाला दूंगा। और यार लब लो ना तो अभी की जो वेबसाइट है ना आपकी, उसमें से निकालो, वहां पर 3 सेट पड़े हुए हैं। एक 1984 वाला, एक 1988 वाला है, और एक 2008 वाला है। हाँ सही हवाला नहीं मिल रहा है, हमें सही रेफरेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए यार इसलिए नहीं ना मिल रहा कि वहां पर इन्होंने बदल के रखे हुए ना हवाले। मसला ये है। कर देता हूँ मैं 12 सितंबर 1905 के मलफूजात खोलो किसी भी एडिशन से, छोड़ो एडिशन को छोड़ो, 12 सितंबर के मलफूजात खोलो किसी भी एडिशन से। समीर भाई 364 सफा है, 364 है, समीर भाई 346 किसी भी नहीं है, एडिशन से खोल गलत दे, है। अमर भाई 12 और सितंबर भाई कानून 1905 मलफूजात के खोल गए मलफूजात तो में ये पूरे बात दे है। पूरे एडिशन ना। तो यार मैं ड्राइव कर दिया, मलफूजात किस तरह खोल सकना मैं? यहाँ तो चलो कैमरा खोल के ला दो। यो यार थानू गल करन दो। तो यहाँ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ 364 कोई मस्ती मुस्ती नहीं करन दिया। 364 सफा 364 अमर भाई एक सिंपल अमर भाई सिंपल कह देने आ। बाकी भाई खामोश रहे यार, खामोश जी। हो जाएं। पहली गल ते वे समीर साहब एक मिनट ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦਵੋ, ਮੈਂ ਪੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ ਸमीर साहब, अगर ਤੁਸੀਂ नहीं जवाब देन देना 364 सफा खोलो, मलफूजात है बस। पहले हवाला तो ढूंढे ना, कौन सा हवाला है ना। मिल जाता है, वो हवाला मिल जाता है, उसके अलावा इसको कौन 364 सफा खोले, ये जो किताब खोली हुई है इसने 364 सफा खोले। हाँ जी 364 पर आ गया। या उसको इंग्लिश में बोलो, 364 ये है 364 364 यार 364 उसी पर हूँ। नहीं इसमें नहीं लिखा हुआ गाली वाले नहीं किया लिखा के हुआ। नहीं लिखा हुआ। ये कौन सा मतलब एडिशन है? 84 वाला खोला कि 88 वाला? ओ यार जेड़ा भी जे काट लिया पहलू फिर जेड़ा भी दा क्या मतलब है? बात सुने ना यार, आमर भाई मेरी बात सुने। 10 चलो मैं म्यूट करना, मैं मलफूजात दियां केड़ी जे दसो। मैं बताता हूँ एडिशन जो हवाला ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। यार तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ ना, तुम्हें ढूंढने आसान ना मैनू दसो, हवाला दसो। आसान तरीका नहीं आसान नहीं मैनू चाहिए। सबर कर में मौजूद है। तरीका आया देने तेन वाला। चलो दोगे ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਸਮੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ चुप देने ना चुप कर ਯਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨੇ ਸਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ। दिल कर रहा था भाई, बोलन दे तीन चुप कर। तीन लोग एक साथ ना बोले, ठीक है। समीर साहब प्यारे भाई, अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर बैठ कर जवाब दें तो ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो हम चले जाते हैं। बात पढ़ लें तो फिर जवाब देना ना, या पढ़े बगैर देगा। मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਈਏ। ऐसा पहले क्लियर कर लेना, फिर जवाब भी हो जाता है ना। हाँ जी वो कर लेने हैं।
समीर साहब ये देखें 3 बंदे बोल रहे हैं और मुझे जवाब नहीं देने यार दे रहे। हवाले का वो भाई पहले हवाला तो ढूंढे ना के डिक्शनरी का नहीं पता वो कौन भाई से पहले हवाला तो सही हवाला तो मिले कि समीर कौन साहब वो ढूंढे ना, उसके अलावा भी तो बातें की हैं ना इन्होंने, वो हवाला ये ढूंढे, उस पर भी मैं बात करूंगा। जो पहली बातें की हैं उसका मुझे जवाब देने दें प्यारे पहले भाई। ये हवाला इस पे फैसला करना है कि ये मानता है कि नहीं मानता इमाम और हुसैन भी से बड़ी बढ़कर बातें हैं उसकी फैसला करने मुल्ला की। लतीफ की मौत को। ये देखें इसका यार, फैसला पहले करवाना। जवाब देने दे समीर साहब। अगर आप नहीं चाहते कि हम ये जवाब हवाला दें, निकलवाएं हम और चले फैसला जाते हैं। करवाएं। करे करे अगर आप नहीं चाहते तो हम चले जाते हैं प्यारे भाई। अब ये जाने के ब्लैकमेलिंग करेगा, आपको धमकियां देगा, मैं चला जाऊंगा, कोई मैं चला धमकी नहीं जाऊंगा। दे रहे। अगर भाई- बात नहीं करने देनी तो फिर हमने बैठकर क्या करना हाँ है? ठीक है इमरान भाई, ये जो सफा लगा हुआ है क्या आप ये मानते हो ये मलफूजा का प्यारे सफा भाई है? मुझे सारी बात का जवाब देने दें। आप ना बताएं कि मैंने क्या जवाब देना है। जो इन्होंने बात की है मुझे चलो सारी 2 मिनट बात टाइम का- लगा दो, इसका 2 मिनट टाइम लगा दो। नहीं भाई तुसी अपना सफा कटो दे। इन्होंने 7 मिनट लिए हैं, मुझे 2 मिनट दे दो। ये ना इंसाफ है समीर साहब? और भाई सभी को 2 मिनट ही दे रहा हूँ मैं ना, उससे ज्यादा तो मैं किसी को ये भी- 2 मिनट में इन्होंने ये सारी बात की है समीर साहब। आप भी बोल रहे थे बिना टाइम के, आप भी काफी देर तक बोल लिया ना आपने। ठीक आप है, मुझे 1 3 मिनट दें, उसके बाद 2 मिनट इनके भी लगाएं और मेरे भी लगाएं। नहीं सबका 2 ही मिनट है भाई, तो 3 नहीं मिनट ना, ये ज्यादा। 2 इन्होंने 5-7 मिनट बात की है समीर साहब। चलो भाई चलो बात करो। बात यह है समीर साहब कि हज़रत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करते थे और हम भी करते हैं। अब हमने भी अपने अकीदे का इजहार करना। अब इसको अलैहिस्सलाम याद आ गया ना इतनी देर के बाद। हमने भी पढ़नी है हदीस अल्लाह के नबी की, करीबन सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून। सुमैर वो कज़्ज़ाब दज्जाल हैं जो नबी पाक समीर साहब का दावा ये करते हैं। लड़ाई करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते बात। अब ये अलैहिस्सलाम इसको 1.5 घंटे बाद क्यों याद आया जी? उस मैं वक्त की पहले बात भी ये कर रहे कह हैं, रहा था, कहाँ से आपने अब सुना सुमैर है। इसको चुप कराओ या पॉप मैं तो पीटर पहले जॉन भी अहमद नज़ीर इस्लाम में को। बोल रहा था। गाली ना दे किसी को, ठीक है? गाली नहीं ना सुमैर इससे को अपना कैमरा ऑन करे और अब 1.5 घंटे बाद इसको क्यों याद आया है? 1.5 घंटे बाद अलैहिस्सलाम किसको याद आ गया? चुप करना, समझ चुप आई कर जॉन पीटर, ओ भाई, उनका जॉन टाइम पीटर चल रहा पॉप है। चुप कर। भाई, जाओ तुम जाओ एक मिनट किधर जाओ? जाओ गाली ना, जाओ। मेरा टाइम दोबारा लगाएं समीर साहब। हाँ, आपका टाइम दोबारा और ये होगा। मेरे टाइम में क्यों ये बोले हैं ये बताएं। अगर अभी इसी ठीक है, बार अगर किसी ने ठीक बोला है। तो मैं नीचे फेंक दूंगा भाई। ठीक है, मैं म्यूट करता हूँ समीर साहब, मैं म्यूट करने लगा हूँ। जो ये बोलेगा ना वो सुनेगा मुझसे। ये याद रखना, फिर बाद में चीख नहीं मारनी। अभी ठीक है 1 मिनट में इनका टाइम शुरू कर रहा हूँ पहले और से। प्यारे भाई ये देखें, इनके 4 बंदे बैठे हुए हैं, 3 हैं, हमारा भी 1 बंदा, इरफान जाट को भी ऊपर लें। ओके वो क्या करेंगे? अच्छा ऊपर अच्छा लेंगे आप। 3 इनके हैं तो हमारे 3 क्यों नहीं है? क्यों देगा ना ऊंची बात से। आपसे काम ही गालियां देते हैं। देखें समीर साहब, आपको मैंने ये दिखाया कि खुदा भी इन्होंने फर्जी बनाया हुआ है, इन्होंने सारा कुछ फर्जी बनाया हुआ है। इसी तरह और ये इन्होंने ईसा को भी फर्जी बनाया हुआ है। मैं जनाब मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब का दिखा सकता हूँ, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का दिखा सकता हूँ, जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम फर्जी बनाकर तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि वो शराब पीते थे और शराब पिलाते थे और उनकी वजह से शिरक फैला है। ये मैं ये भी दिखा सकता हूँ। तो इन्होंने बेशुमार शख्सियात को फर्जी बनाया। इसी तरह हमारे काबरीन में हमारे इमाम ने भी फर्जी बनाया। और उस फर्जी जो अकायद थे, जो ईसा हज़रत इमाम हुसैन को खुदा बनाते थे, हज़रत इमाम हुसैन को खुदा से जाकर मिलाते थे, शिरक करते थे, उनको जवाब दिया। इसमें कोई गलती नहीं की। और हमारे इमाम हज़रत इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुदा के बरगजीदा और साहिब कमाल हैं और साहिब इफ़त और असमत और आइमतुल हुदा थे। और वो बिलाशुबा दोनों मानो के रूह से आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल थे। फिर आगे फरमाते हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताहिर और मुतहर था और बिलाशिबा वो इन बरगजीदों से है जिनको अल्लाह ताला अपने हाथ से साफ करता है और अपनी मोहब्बत से ममूर करता है। और बिलाशुबा वो सरदाराने बहिश्त में से हैं और एक जरा कीना उनसे रखना मोजबे सल्बे ईमान है। और इस इमाम के तकवा और मोहब्बत इलाही और सब्र इस्तकामत और ज़ाहद और इबादत हमारे लिए उसवा हसना है। वो तो ये कह रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन के बारे में। ठीक है, 2 मिनट हो गए भाई पूरे। ये है हज़रत इमाम हुसैन से जो हमारे इमाम की मोहब्बत है। ये देखें यार, ये फिर बोले हैं जबकि मेरा 15-20 सेकंड बड़े हुए। बोलो आप बोलो। क्यों ये बोलते हैं समीर साहब दरमियान में? यार ये ना करे ना। चलो ठीक है खत्म हो गया आपका टाइम। सारा टाइम इन्होंने मेरा खराब किया समीर साहब।
अच्छा भाई, पहली बात तो ये है कि इसमीर साहब, हमारे सवाल का जवाब इनसे अब बन नहीं पड़ रहा। जो तौहीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गई है, इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो उन्होंने कहा है कि तुम हुसैन को याद करके अभी तक रोते हो, मुझे तो हर वक्त तईद मिलती रहती है खुदा की। तुम्हारा हुसैन दुश्मनों का मारा हुआ है और मैं फना फिल्ला हूँ, मैं खुदा का कुश्ता हूँ, मैं खुदा का मारा हुआ हूँ। जो ये कहे कि हुसैन बड़े ताहिर और मुतहर हैं पर मैं उनसे ज्यादा हूँ, ये तो इन हो रही की तारीफ हो रही है इसमीर साहब। जो ये कहे कि हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदारान में से हैं, लेकिन मेरा जो मुरीद है ना वो उनसे बढ़कर है, हजरत इमाम हुसैन से बढ़कर है। अब बताओ कि वो अगर सरदार हैं जन्नत के नौजवानों के, तो ये क्या है? ये क्या है? जो भी ऐसे हो ही नहीं सकता। जो भी ऐसे इसको पूछो ना, अगर इसने ये अकीदा बयान नहीं किया तो बात अधूरी रहेगी। इसको पूछो कि क्या ये मानता है कि ये मुल्ला लतीफ की मौत इन मिर्जाइयों के नजदीक इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर है? जिस बंदे ने अंग्रेजों की जानें बचाने के लिए अपनी जान दी हो और अमीर काबुल ने उसको पथराव वहां करवा के मरवा दिया हो, संसार करवा दिया हो, उसकी मौत, जो अंग्रेजों की जानें बचाता मर गया, उसकी मौत इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर करार देते हैं और फिर कहते हैं बिल्कुल गलत बात है। तो इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं। कह दें कि हमने तो इनकी है, हम अपने काबरीन को इमाम हुसैन से अफजल मानते हैं, मिर्जा कादियानी को भी अफजल मानते हैं और उसको मुल्ला लतीफ को भी मानते हैं। इसमें इनकार करने वाली कौन सी बात है? खाम खा पंचर लगा रहे हैं 2 घंटे से। नहीं मतलब हजरत साहब का ये है, पहले वो 3 लाइनें नहीं पढ़ी जा रही थी, अब ये सफा नहीं मिल रहा, फिर कोई और अटकल पच्चू लगाएगा। मुसीबत ये है कि इन बातों का जवाब है ही नहीं। जब इमाम हुसैन से आपका अकाबर कहता है कि 100 हुसैन मेरी जेब में है, 100 हुसैन, तो फिर पीछे कोई बात रह जाती है। वो कहता है वो जन्नत के नौजवानों के सरदार है पर मैं उससे, तो आप अंदाजा ला लो कि वो तारीफ कर रहे हैं तो इनकार है। तौहीन उसने की है। लात ये कहा है कि 100 हुसैन मेरी जेब में, ये कहा है उन्होंने, ये कहा है हाँ, सद हुसैन असदर गिरेबानम करबला सैर हर आनम, मेरी हर वक्त करबला में सैर होती है। टाइम हो गया है। सद हुसैन असदर गिरेबानम, यार इनको 100 हुसैन मेरी जेब में। पहली बात ये है कि इनको पहले भी इमरान कहा भाई, है। एक मिनट में आपको टाइम दे रहा हूँ, आपको टाइम। सत हुसैन असदर गिरेबानम, और क्या कहा है? और क्या कहा है? करबलाए अस्त सैर हर आनम, हर वक्त मेरी करबला में सैर रहती है। सद हुसैन असदर गिरेबानम, 100 हुसैन मेरी जेब में है। और ये कहा है कि वो नौमीदी से मर गया है। तुम जिससे नजात चाह रहे हो वो तो नौमीदी में मारा गया करबला में। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। जी इसमीर भाई, इनका टाइम हो गया है। प्यारे भाई ऐसे ना करें, ये आप गलत कर रहे हैं ना इसमीर साहब। नहीं, वो लंबा बोल 3 मिनट दें। ठीक है, अभी मैं आपका टाइम शुरू हो रहा है। हाँ 3 मिनट है ना फिर मेरे। जो बात करें आप। जी बात ये है कि हमने बता दिया, देखें इन्होंने अभी तक ये जवाब दिया है कि इनका खुदा ज़िना करता है, इनका खुदा पेशाब करता है, इनका खुदा टट्टी करता है, इनका खुदा नाचता है, इनका खुदा लवातत करता है। इन्होंने जवाब दिया है हमें। इन्होंने यजीद पर लानत डाली है, जो सबसे बड़ा गुस्ताख था। उस पर तो ये लानत नहीं डालते, उस पर क्यों नहीं लानत डालते? यजीद पर लानत करें और फिर मुझसे भी आगे सवाल कर लें। यजीद पर ये लानत नहीं कर रहे। जो सबसे बड़ा, यजीद से बड़ा कोई है दुश्मन इमाम हुसैन का? बताएं इसमीर साहब। नहीं, यजीद से बढ़कर है कोई दुश्मन? जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं, मैंने ये पूछा, यजीद से बढ़कर कोई दुश्मन है इमाम हुसैन का? नहीं, तो ये लानत क्यों नहीं करता यजीद पर? और यहाँ पर कह रहे हैं। और दूसरा, ये गिरेबान का तर्जमा कहां से करते हैं? जेब, अपनी तरफ से जेब करते जा रहे हैं। एक बंदा जानबूझकर ही बिगाड़ दे किसी को, लफ्ज को, तो उसके हम जिम्मेदार हैं। तो कोई भी बंदा कहे, वो तो करबला से अपनी निस्बत कर रहे हैं कि हम तो हर वक्त ही करबला में रहते हैं, इस्लाम के लिए जिहाद कर रहे हैं, इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, और हम मेरे जिगर में तो हर वक्त जो है वो हुसैन है। अच्छा, सो हुसैन असदर गिरेबानम, इसका मतलब हाँ, तो गिरेबान जिगर ही होता है ना? गिरेबान जिगर नहीं होता। क्या होता है गिरेबान के अंदर? क्या होता है? जिगर होता है या क्या होता है? दिल होता है या क्या होता है? दिल, कौन सी जिगर गिरेबान के अंदर जेब लगी होती है समीर भाई? गिरेबान गर्दन को कहते, गर्दन को। कहाँ गर्दन को गिरेबान कहते हैं? भाई मैं आपकी गिरेबान से पकड़ूंगा ना, उसे कहते हैं गिरेबान। हाँ, तो ये भी कहते हैं गिरेबान में जान को। ये नहीं दे सुना आपने? ठीक है, सो हुसैन असदर गिरेबानम, ये इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब ये है कि जो लोग मेरे दिल में हैं वो तो हुसैन ही है, मेरे दिल में हुसैन है। वो दिल का लफ्ज़ है ही नहीं मेरे भाई, दिल का गिरेबान का यही ना शेर है, वो शेर है, शेर की तशरीह होती है।
शेर की शेर का तशरीह कौन सा लफ्जी तर्जुमा होता है प्यारे भाई? आप पता नहीं कौन, शेरों के भी लफ्जी तर्जुमे होते हैं कभी? शेरों की भी लफ्जी तर्जुमा होता है? हाँ, शेरों का भी लफ्जी तर्जुमा होता है। ओ भाई, जो लफ्ज शेर में है ही नहीं तो आप उसे कैसे शेर में डाल सकते अपनी तरफ से? हाँ, तो आप डाल रहे हो ना। जरा बड़ी शेर करें, जो बड़ी होता है करें, ना, मैं वो स्क्रीन में एक दिखाता हूँ। बस पूरी बात उधर लिखी हुई है, जरा बड़ी करें स्क्रीन शेर में। जो अब होता इसका है वो टाइम एक काफी हो पूरे गया ना। पूरे नहीं भाई। तासर को बयान करने के लिए होता है। ये देखें जी, ये लिखा हुआ है कादियान। अगर कोई बंदा यही कह दे, टाइम लगाए ना। हाँ टाइम यार, लगाए। और इसको चुप कराओ यार। ये जिस तरह इसने लिखा हुआ है कि करबलाए अस्त सैर हर आनम सद हुसैन अस्त दर गिरे बानम, अगर इसके बारे में कोई बंदा कहे कादियान अस्त हर सैर हर आनम सद कादियानी अस्त दर गिरे बानम, ये कहेंगे गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, हमारे इमाम को गालियां दे रहे हैं, चीखें मारेंगे। यही सवाल हम आपसे करते हैं कि ये जो दुर्र समीन का सफ़ा आपके सामने लगा हुआ है, जिसमें उसने कहा कि इमाम हुसैन 100 हुसैन मेरी जेब में, वजह पहले मिस्र में बयान किया है। कहता है करबलाए अस्त सैर हर आनम, मेरी हर वक्त करबला में सैर होती है, हर वक्त। इमाम हुसैन तो एक दफा करबला गए थे ना, इमाम हुसैन तो सिर्फ एक दफा करबला गए थे, मेरी तो हर वक्त ही करबला में सैर होती है। इसका ये नतीजा निकला कि 100 हुसैन मेरी जेब में है, 100 हुसैन। इसमें अब पंचर लगाने वाली कोई बात पीछे बचती है? रो रहे हैं मिर्जाई। असल मुसीबत यह है कि मैंने कहा ये बातें, इनका जवाब ये दे नहीं सकते। कह दो कि भाई हम उसको अफजल मानते हैं, अपने सारे काबरीन को इमाम हुसैन से अफजल मानते हैं, और इमाम हुसैन को हम कुछ भी नहीं समझते, बल्कि उनको गालियां दी हुई हैं, उनकी तौहीन की हुई है, उनको नीचे गिरा कर अपने इस सरबराह को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। इसका नाम इस्लाम रखना चाहते हो, इसको लेकर मुसलमानों में दाखिल होना चाहते हो, और फिर कहते हो मुसलमानों ने हमें निकाल दिया, कानून को हाथ में ले लिया, शरीयत को हाथ में पकड़ लिया। और जो इमाम हुसैन के बारे में इस तरह की बात लिखेगा, उसको इस्लाम से क्या निस्बत, उसका इस्लाम से क्या लेना देना? ओ 100 हुसैन जो कहे कि मेरी जेब में है, इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है? जो कहे कि मेरे मुरीद की मौत मुल्ला लतीफ की हजरत इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर इसलिए है कि उसने सिदक और वफा का बड़ा नमूना दिखलाया है, अल्लाह नमूना इमाम हुसैन से बढ़कर नमूना दिखलाया, उसको मैं क्या कहूँ? आप कहते हैं गालियां देता है, मैं उसको लानती ना कहूँ, मेरा दिल तड़पता है इमाम हुसैन के लिए जब ये बात मैं पढ़ता हूँ ना कि सिदक और वफा का नमूना हजरत इमाम हुसैन से बढ़कर उसने दिखलाया है। मैं कहता हूँ इसकी ऐसी की तैसी जो ऐसा लिखे, और उसके बाद कहे कि मेरा इस्लाम से कोई तल्लुक है। काबर और इमाम घर रखे हैं। ओके ठीक है, ठीक है। उसकी ऐसी की तैसी कि जिसको खुदा की गैरत ना आए, जो खुदा को लवातत करने वाला कबूल कर ले, उसकी ऐसी की तैसी। जिनका खुदा लूती हो, जिनका खुदा ज़िनाकार हो, और वो इमाम हुसैन की बात करें, उनकी भी ऐसी की तैसी, उनमें गैरत नहीं है। समीर साहब, अगर खुदा की जगह पर यहाँ पर इमाम हुसैन का नाम कर दिया जाए, फिर भी ये तुहीन होगी कि नहीं? फिर ये तुहीन होगी कि नहीं? वो खुदा की गैरत नहीं है, हजरत इमाम हुसैन का नाम लेकर जो है ना वो दजल कर रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। और जो मुसन्नफ की मुहकम बात है उसको छोड़कर मुतशाबिहात की तरफ लेकर जा रहा है। ये मुहकम बात नहीं इसको नजर आ रही कि हजरत इमाम हुसैन मोतर पाक थे, वो सरदाराने बीचते हैं, उसको नहीं ये नजर आ रही। इसको कहो मुत्तहर तो कह दे, मुत्तर तो लफ्ज गलत ना बोले, मुत्तहर होता है। चुप करे मेरी गल मुत्तर तो मिर्जा कादियानी होगा मुत्तर। आमिर नज़ीर साहब खामोश होकर के बैठ जाएं। अभी देख आपका लें ना समीर थोड़ा साहब, सा ये मेरी वो- बात में मुत्ताहर बोले लफ्ज हैं, होता है मेरा पाक। टाइम दोबारा शुरू करें। देखें, मुत्ताहर पाक लफ्ज को कहते ठीक हैं, है, मुत्ताहर मुत्तर और गाली को मुत्तर- कहते हैं। ये गाली मुहतर भी पाक को कहते हैं। जमीर साहब इसको मना कराएं, उसके टाइम में बोल। समीर भाई ये मेरे टाइम में बोले हैं, टाइम दोबारा शुरू करें। टाइम दोबारा नहीं, यार क्या है समीर भाई, ये आप भी ऐसे, मतलब ये इंसाफ है आपका कि मेरे एक टाइम मिनट। को पूरे का पूरा खा जाओ और मेरा दोबारा आना शुरू करो? ठीक है, एक और मिनट दिया जाएगा आपको। क्यों 1 मिनट? मेरे 2 मिनट यार, दबाव बात में, करो 1 ना, मिनट खत्म मैं क्या करना करूं? है। यार चलो, सुनते हैं आपकी बात, चलो बात करे बात। हाँ 2 मिनट दोबारा लगाए ना प्यारे भाई, और दोबारा ना वो बोले मेरे टाइम में। अब बात नहीं करोगे अब? हाँ? मेरा टाइम तो लगाए ना, मुझे क्या पता है आप क्या करें। अगर गाली देगा बीच में मुत्तर शुतर बोलेगा तो मैं तो मैंने नहीं मूतर बोला, ये झूठ बोल रहे हैं। इसको मैंने पढ़ना मूतर नहीं आता, बोला। ये जानबूझ के ये आमदन कर रहा है। मूतर ये बोला है, मूतर लफ्ज़ पाक मुश्किल नहीं है, होता ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁੱਤਰ मैंने मूतर पढ़ बोला के आओ है, ना, मूतर ਜਿਹੜੇ जो है पढ़े वो लिखे पाक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ को ਅੱਗੇ कहते हैं। ਲਿਆਓ ਨਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰਾਂ ਉੱਥੇ।
سمیر بھائی ٹائم لگا، پڑھے لکھے میں نے بتائیے کیا موتر ہو؟ بولا ہے، مطہر بھی موتر نہیں لفظ پڑھنا جو ہے آتا، نا وہ پاک کوئی کہتے ہیں، مطہر لفظ ہے مطہر، اور موتر بھی ہوتا ہے، اور میم موتر اور آئیں توئیں، موتر ارے اور جاؤ لے جاؤ جاؤ پر کیوں ہوندا ہے؟ لے جاؤ انہوں نے پر وڈے مربیل چلو ہو رہے پڑھ ہیں، لے بہت سان، بہترین بات کرتا ہے، مطہر بہت بڑا چلو ڈیبیٹر مطہر ہے، بول دیتے ہیں، مطہر جی بولنے سمیر نہیں بھائی آتا ٹائم اس کو لگائیں پڑھا دوبارہ۔ بھائی امرو سمپل ہے، تسی بھی مرزا موتر شلوار کہہ لو، ٹھیک ہے؟ پھر وہی میں نجف کہنا پھر چکا نکلنی ہے۔ لعنت نرجس نو کہہ لو، نرجس نو کہہ لو، انہوں بغیرت کہہ لو دلیا۔ سمپل تسی نے موتر شلوار کہہ لو، کوئی کہنے دو سو۔ سمیر صاحب یہ اب نہیں بات کرنا چاہتے، یہ اب اچھا چلو لڑنا ٹھیک چاہتے ہے ہیں، مجھے عمران لڑنا صاحب، چاہتے ہیں۔ عمران بھائی ابھی آپ کا ٹائم لگا رہا ہوں میں، اگر ان کے ٹائم میں کوئی بولے گا تو ان کا ٹائم دوبارہ شروع کرنا پڑے گا پھر۔ جزاک اللہ۔ گالی نہ دے، میں نہیں بولتا، میں نہیں جی بولتا۔ ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ محکم بات کو چھوڑ کر ایک متشابہ بات کی طرف جانا یہ ویسے ہی غلط بات ہے۔ محکم کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین مطہر ہیں، طاہر ہیں، مطہر تھے اور برگزیدہ ہیں اور بہشت کے سردار ہیں، اور ان سے ایک ذرا کی نہ رکھنا موجب سلب ایمان ہے، کہ حضرت امام حسین سے ایک ذرا بھی جو ہے نا بغض اور کینہ رکھنا یہ تو ایمان کو ہی سلب کر دیتا ہے۔ اس امام کی تقوی اور محبت الہی، صبر و استقامت، زاہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ حضرت مرزا صاحب کا امام حسین کے متعلق جو ہے نا عقیدہ، اور یہی ہم مانتے ہیں۔ اب جو شخص خدا کی عزت کے لیے نہیں بولتا، خدا کی غیرت کے لیے نہیں بولتا، اور وہ کہتا ہے کہ امام حسین کو توہین ہوگی، امام حسین کو، اس کا دل جو ہے وہ خدا کے لیے تو نہیں دھڑکتا، خدا کی اس کو ذرا غیرت نہیں آتی، بتائیں وہ شخص جو ہے وہ واقعی تقوی والا ہے، واقعی وہ سچ بول رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس کے خدا کو یہ کہا جائے کہ بھولنا، اونگنا، سونا، ناچنا، ٹھرکنا، نرد کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا، کوئی خباثت، کوئی فصیحت اس کی شان کے خلاف نہیں۔ وہ کھانے کا منہ، بھرنے کا پیٹ اور مرد و زنی دونوں کی علامتیں بالفعل رکھتا ہے۔ جس کے خدا کو یہ کہا جائے اور وہ کہے کہ نہیں اس پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو الزامی جواب ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے، یہ تو الزامی جواب ہے، یہ وہ اس کو الزامی جواب دے رہے تھے، جو یہ شخص کہے اور وہ کہے کہ امام حسین کی جو ہے نا وہ توہین ہوگی، اور جو شخص امام حسین کے سب سے بڑے دشمن جنہوں نے امام حسین کو قتل کروایا، جو اس پر لعنت نہ کرے، یزید پر لعنت نہ کرے، اور وہ کہے کہ فلانے نے گستاخی کر دی تھی، اسے کہیں کہ یزید پر لعنت کرے اگر یہ واقعی حضرت امام حسین سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو کرے نا یزید پر لعنت۔ کیوں نہیں کرتا یزید پر لعنت؟ یزید علیہ السلام کہنے والے امام حسین کی توہین کے الزام لگائیں گے۔ بس یزید پلید پر لعنت بے شمار، سب بولو۔ اچھا، اگر ان کے ٹائم کے درمیان اگر کوئی بولا تو وہ سیدھا نیچے جائے گا بھائی۔ یہ لو نذیر بھائی بات۔ صرف ایک سیکنڈ یزید پہ لانا نہیں، جدید کے مداح پہ لانا۔ رانا صاحب جدید کے مداح پہ لانا تو چلے۔ اے نجف بول رہا ہے یہ اس کو بند کرے۔ ٹھہر جو ایک منٹ یار، گالی دی جا رہی۔ زہار سل تھلے ہے نہیں کہ میں بہت بیزی ہونے لگا کہ گل میں کر لیں تو گالی دے گا، جاؤ۔ آخری بات مجھے کر لینے دیں، کیونکہ میں بہت یہاں پر نہیں گالی کیوں دینی کسی نے یار۔ یہ جی پڑھو جی خط اس کا مرزا قادیانی کا، یزید پر لعنت ڈالنے کا آج فیصلہ کاری لیں۔ ایک آخری بات یہی رہے گی، باقی تو منجی ٹھک گئی ہے۔ پڑھنا بھائی خط، مرزا قادیانی خط میں اپنے میں لکھتا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واضح ہو جن افعال کی نسبت یزید کی طرف منسوب کی جاتی ہے مجھے یقیناً معلوم نہیں کہ وہ کس طرح واقع ہوئے۔ اس امر میں خبریں مختلف اور روایتیں بہت ہیں۔ تقوی کی یہ شرط ہے کہ انسان دوسروں کی لعنت کی طرف التفات نہ کرے، اور رانا راشد اور دوسرے نال لعنت دی التفات نہ کرو، اپنے مرزا نو جھوٹا نہ کرو۔ سنو الفاظ مرزا قادیانی صاحب کے: انسان دوسروں کی لعنت کی طرف التفات نہ کرے بلکہ اپنے ہی نفس کے فسق سے ڈرتا رہے اور اس کے تزکیہ اور تصفیہ میں کوشش کرے، کیونکہ یزید کا گناہ تم کو کچھ ضرر نہیں دیتا۔ اگر اس کی شرارت تھی تو اس کا وبال یزید پر ہی پڑے گا۔ اے جے مرزا قادیانی دا موقف، آکھو مرزا قادیانی نے لعنت نہیں پائی تے جڑا لعنت نہ پاوے یزید دے اوتے آکھو لعنتی ہے۔ سارے آکھو جڑا یزید تے لعنت نہ پائے لعنتی ہے، یزید پر لعنت نہ ڈالنے والا لعنتی ہے۔ آکھو سبحان اللہ، لعنتی کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے۔ شلوار نے کیا جڑا یزید تے لعنت نہ پائے کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے۔ لگا پتہ لعنت اس ویلے نے چکی سی، یزید تے لعنت پاؤ، یزید تے لعنت، اے اس
मान रिजवी आ गया मेरी जगह गल कर लेगा ज़िया भाई अवेलेबल शायद नहीं है तो मेरे को सिग्नल भी नहीं है दूसरा बिजी हो भागना नहीं थोड़ा सा बैठे जी। आज थोड़ा अच्छा चलो ठीक है टाइम रख लो मेरा पुत्र टाइम रख लो सारे मर्द इकट्ठे होके आ जाओ सारे मर्द मैं अमन नज़ीर अच्छा मैं काम करने लगे मेरे पीछे तो शोर सुनाई दे समीर रहा है आमिर भाई ये मिर्जा पुत्र ले साडे मर्द हैं ये मान लाल जमे को नहीं जी मेरे समीर नाल भाई गल कर मैं वो बड़ा करेंगे अच्छा जी, अभी समीर इनका भाई। उस्मान रिजवी करेगा गल मेरी तरफ जी अगर कोई इनके टाइम में बोलेगा तो इनका टाइम दोबारा फिर शुरू करना पड़ेगा, फिर आप मुझे ना बताइएगा कि आप नाइंसाफी कर रहे, ये करे वो करे। ठीक, जज़ाक शुरू हो जाए भाई। जी। ये देखें हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम तो यजीद पर लानत करते थे। वो किस रंग में किसी ने सवाल किया, किस रंग में उसको जवाब दिया गया, और इसने दज्जाल को फिर अलैहिस्सलाम कहना शुरू कर दिया पहले क्यों नहीं कहा भाई मेरे दरमियान दो में घंटे बोलना शुरू कर दिया। समीर भाई आप ये गालियां देना चाहते हैं? ठीक है हम अपने टाइम में अपनी बात करेंगे ठीक है कहने दो इसको अलैहिस्सलाम हम दज्जाल कहेंगे करो करो ये टाइम दोबारा इसका टाइम अभी दोबारा शुरू करना पड़ेगा। शुक्रिया। हज़रत साहब फरमाते हैं यजीद पलीत ने ये जुल्म हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर करवाया, मगर खुदा ने भी इन जालिमों को बहुत जल्द अपने